اسمبلی کا اجلاس اگلے ہفتے متوقع ہے۔ اجلاس کی تیاریوں کے لیے آج اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے افسران کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اسمبلی کی عمارت میں رنگ و روغن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ آج جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج اجلاس جو ہے اگلے ہفتے متوقع ہے، اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، اس وقت میں سندھ اسمبلی کی اس تاریخی عمارت کے باہر موجود ہوں جو 1940 میں جس کا افتتاح ہوا تھا۔ ویسے سندھ اسمبلی 1937 سے موجود ہے، لیکن یہ جو عمارت ہے تاریخی 1942 میں اس میں سندھ اسمبلی کا کام شروع ہوا۔ یہی وہ عمارت ہے جس میں قرارداد پاکستان بھی پیش کی گئی تھی۔ سپٹمبر میں جو نگران حکومت آئی ہے اس کے بعد اسمبلی کی خوبصورتی ماند پڑ گئی تھی۔ اب دوبارہ اس پہ رنگ و روغن کیا جا رہا ہے، کیاریاں بنائی جا رہی ہیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں بنائی جا رہی ہیں، نشستیں ٹھیک کی جا رہی ہیں۔ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ سندھ اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آئندہ ہفتے متفق ہے۔ 2-4 دن ابھی یہ کام جاری رہے گا رنگ و روغن کا۔ اگلے ہفتے سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا اور ظاہر ہے کہ اجلاس کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پہلے ارکان حلف لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا حلف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر قائد ایوان کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اسپیکر جو ہے وہ ہمیشہ رہتے ہیں جب تک نئے اسپیکر آئیں۔ تو اسپیکر آغا سراج درانی اب بھی سندھ اسمبلی میں موجود ہیں۔ آج انہوں نے جو اسمبلی سیکریٹریٹ کے افسران ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا ہے آنے والے اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس پورے مرحلے پہ آنا چاہ رہے ہیں جس میں سندھ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا۔ دوبارہ اجلاس شروع ہونے کے بعد ظاہر ہے اپنے پرانے پیٹرن پہ آ جائے گا، وہی قانون سازی ہوگی اور ارکان اپنا اپنا موقف پیش کریں گے۔ تو بہرحال سندھ اسمبلی کے اجلاس بلانے کی تیاریاں ہیں۔ 168 کا یہ ایوان ہوتا ہے سندھ اسمبلی کا۔ اس میں اس وقت پارٹی پوزیشن کافی واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 84 جنرل نشستیں ہیں۔ خواتین اور اقلیتوں کو ملا کر 110 کے لگ بھگ، یعنی 168 کے ایوان میں 110 کا نمبر بنتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ دوسرے نمبر پہ متحدہ قومی موومنٹ ہے جس کے پاس یہاں پہ 28 جو ہیں جنرل نشستیں ہیں، لیکن خواتین اور مخصوص نشستیں ملا کر 35 سے 40 ان کی تعداد بنے گی۔ تو دوسری بڑی نمبر پارٹی جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہوگی سندھ اسمبلی میں، جبکہ آزاد ارکان 11 موجود ہیں۔ ان کو کوئی خواتین کی نشست نہیں مل سکے گی چونکہ وہ آزاد ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ جی ڈی اے کے 2 ارکان ہیں، جماعت اسلامی کے 2 ارکان ہیں۔ تو جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا اس طرح پارٹی پوزیشن واضح ہوگی۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اکیلے سر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ جی اچھا، آج جمالی افسران کا اجلاس ہے، کون کون اس میں شامل ہوگا اور آج کیا کچھ کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، اس اجلاس میں سندھ اسمبلی کا سیکریٹریٹ کا ایک بہت بڑا اسٹاف ہوتا ہے، سینکڑوں ملازمین ہوتے ہیں اور اجلاس کی تیاریاں ہوتی ہیں، سیکیورٹی ہوتی ہے، گیلریز ہوتی ہیں، گیلریز کے پاسز بننے ہوتے ہیں، مہمانوں کی گیلریز ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ جب پہلا دن ہوتا ہے تو اس میں مہمانوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ نئے جو منتخب ہو کے رکن اسمبلی آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں ایوان میں پہلے دن کی کارروائی دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ سارے انتظامات جو ہے یہ سندھ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے آج کے اجلاس میں، اور یقیناً یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کس طرح اجلاس کی پہلے دن کی کارروائی کنڈکٹ کی جائے۔ پہلے دن کی کارروائی موجودہ اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت ہی شروع ہوگی۔ اس کے بعد پھر ممبران کا حلف ہوگا، اس کے بعد پھر اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ اسپیکر کا انتخاب ہوتے ہی آغا سراج درانی جو ہے وہ اسپیکر کی نشست چھوڑ دیں گے اور نئے آنے والے اسپیکر کو تمام چارج جو ہے حوالے کریں گے۔ ٹھیک ہے عاطف جمالی، کراچی کی 22 میں سے 21 قومی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن کمیشن نے کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہیں اور قومی اسمبلی میں ایم کے ایم 14 اور پیپلز پارٹی 7 نشستیں حاصل کر سکی ہے، لیکن حلقہ این اے 238 کا نتیجہ تاحال جاری نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہے؟
जी देखिए, हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कौमी असम्बली के 22 हलकों से जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन 22 हलकों में से एक हलके का नोटिफिकेशन रोका गया है। NA 238 का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अलबत्ता 21 उम्मीदवारों के या 21 अरकान के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें अहम बात यह है कि NA 238 का जो नतीजा रोका गया है उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो थे हलीम आदिल शेख, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में नताइज को चैलेंज किया था और नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की थी। तो उस वजह से शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 238 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अलबत्ता दीगर 21 नशस्तों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो उम्मीदवार वैसे ही हम गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज में बता चुके हैं कामयाब, वो तमाम के तमाम नोटिफिकेशन के मुताबिक भी कामयाब हो चुके हैं। जी, तो कब तक नतीजा मतवक्के है और इस जो नतीजा आएगा उस पे मुत्तफिक होंगे? क्या इस नतीजे को माना जाएगा आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से? जी, बहुत सारे नताइज को अदालतों में चैलेंज किया गया हुआ है। बहुत सारे उम्मीदवारों, तकरीबन 40 नताइज को यहाँ पे कराची में सूबाई और कौमी असम्बली के 40 नताइज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन अदालत ने गुज़श्ता रोज़ ये हुक्म दिया है कि इसका जो फ़ोरम है, इसका जो बुनियादी फ़ोरम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ट्रिब्यूनल्स हैं, लिहाजा उम्मीदवार पहले इलेक्शन कमीशन में जाएँ, अगर वहाँ उनका मसला हल ना हो तो फिर अदालतों में आए। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने जो आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इससे शायद आज ही सूबाई असम्बली के अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो इससे तो ये साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन उसी स्टैंड पर है जिन लोगों को कामयाब करार दिया गया था। अलबत्ता एक नतीजा जो रोका गया है या एक नोटिफिकेशन जो जारी नहीं हुआ है, उस पर अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन कब इसका नोटिफिकेशन जारी करती है या अदालत के मुताबिक इसका फ़ैसला होगा। जी, अच्छा, आज इस 40 नताइज जो चैलेंज किए गए हैं हलकों से सूबाई और कौमी असम्बली के, तो ज़्यादातर तादाद किन की हैं? आज़ाद उम्मीदवारों की और साथ जमात इस्लामी की तरफ से भी काफ़ी, हमने कहा था, चैलेंज किए गए हैं नताइज। मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने नताइज को चैलेंज किया है। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने भी चैलेंज किया है। जो PTI सपोर्टर आज़ाद अरकान थे उन्होंने भी चैलेंज किया है। JUI के कुछ अरकान ने चैलेंज किया है। दीगर सियासी जमातों के लोगों ने भी सिंध हाई कोर्ट में इन नताइज को चैलेंज किया था, लेकिन अदालत ने ये तमाम अपीलें जो थीं कल निपटा दी हैं और कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए। लिहाजा अब इन तमाम अरकान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करना पड़ेगा, दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा। फिर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला इस बारे में करता है वो इंतहाई अहम होगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 21 अरकान का। सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ये मामला एक साइड पे ज़रूर हो जाएगा और असम्बलियों के इजलास बुलाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, अपडेट कर रहे थे। MQM पाकिस्तान ने अपने कारकुनान को खबरदार कर दिया। MQM ने कारकुनान पर असलहे के इस्तेमाल से मुतालिक पाबंदी आयद कर दी। राब्ता कमेटी की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला जो है सामने आया है। MQM ने अपने तमाम कारकुनान को खबरदार कर दिया है और कारकुनान पर असलहे के इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद कर दी है। राब्ता कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। इस सर्कुलर में ये कहा गया है कि MQM एक पुरअमन जमात है। किसी भी किस्म के असलहे का इस्तेमाल या नुमाइश करने पर जो है वो कारकुनान पर पाबंदी है। जो भी कारकुन MQM का होगा और असलहे की नुमाइश या हवाई फायरिंग में मुलविस पाया जाएगा, उसकी तंजीम से बुनियादी रुकनियत जो है खारिज कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ मजीद दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को दे दी। कराची और हैदराबाद के 58 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दी। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों को निपटा दिया। मजीद जानते हैं मुमताज जमाली से, जी बताएगा।
देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक मज़ीद दरख्वास्तें भी इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी हैं। 2 रुकनी बेंच ने कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न से मजमूई तौर पर जो 58 दरख्वास्तें दायर की जा चुकी थीं, उनको इलेक्शन कमीशन जो है अरसाल करने का हुक्म दे दिया है। तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तें कानून के मुताबिक सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का भी जो है हुक्म दे दिया है। 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तें निपटाने का भी अदालत ने हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन तमाम दरख्वास्तों पर समाअत की है, जिसमें जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने ये दरख्वास्तें दायर की हैं और उन्होंने अपनी दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फॉर्म 45 में उनके नताइज जो थे वो कुछ और थे, जबकि फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गया उनमें नताइज जो है वो रद्दबदल किए गए, जबकि चौथे और तीसरे नंबर पर उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। लिहाजा अदालत ने इन तमाम दरख्वास्त गुजारों को जो है इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली का हल्का PS18 घोटकी की 2 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कल होगी। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने की सिफारिश कर दी है। इस पर मजीद बात करेंगे। आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का सूबाई PS18 घोटकी पर दोबारा कल 2 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। इनमें 2 पोलिंग स्टेशन जिसमें पोलिंग स्टेशन नंबर 161 और 162 शामिल है, जो सिंध असेंबली का हल्का PS18 है, जहाँ पर अमन अमान की सूरत के पेश नजर यहाँ पर रेंजर्स की तैनात की सिफारिश कर दी। सिफारिश 22 फ्लोर को महकमा दाखिला से की गई ताकि अमन अमान की सूरत से बेहतर बनाने के लिए रेंजर्स को तैनात किया जाए। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है नामजद उम्मीदवार जो यहाँ पे शिकस्त हासिल की और नाराज उम्मीदवार था, उन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज रोके गए थे। वहाँ पर दोबारा पोलिंग स्टेशन जो पोलिंग अमल शुरू करने का फैसला किया गया, जिस पर कल जो पोलिंग अमल शुरू होगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर रेंजर्स की तैनाती की सिफारिश कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नौरिया। अंजुमन ताजरान सिंध ने नई हुकूमत के क़याम के लिए सियासी जमातों के राब्तों और अहम बैठक को खुशाइन करार दे दिया। जावेद शम्स कहते हैं सियासी जमातों के गठजोड़ से ही मसाइल हल हो सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाब होने वाली सियासी जमातों की जानिब से अब हुकूमत साजी के हवाले से संजीदगी का इजहार करने लगी हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के कायदीन हैं और अहम रहनुमा हैं, उनके दरमियान अहम बैठक भी देखने में आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान सिंध कराची के सदर जावेद शम्स। इनसे जानते हैं कि जो सियासी जमातें हैं और बिलखुसूस हुकूमत साजी के हवाले से इनकी क्या राय है, सियासी जमातों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात मुकम्मल हो गए, उसके बाद जो है एक हुकूमत बनाने का जो सिलसिला है आईन पाकिस्तान के मुताबिक वो जारी और सारी, और तमाम सियासी जमातें जो है वो उसमें खुल के अपना किरदार अदा कर रही है। और तकरीबन मुस्लिम लीग नून की जो है वफाक में हुकूमत जो है वो बनने के करीब करीब है, और तमाम सियासी जमातें आपस में बैठ के अपने मामलात को तय कर रही हैं। लेकिन इससे बरक्स हम ये कहना चाहते हैं कि अवाम जिसने वोट दिया है, अवाम जिसने मुंतखब किया है, ताजिर बिरादरी जिन्होंने अपना सब कुछ इस इलेक्शन के हवाले से लगाया है, साथ खड़े हुए सियासी जमातों के सियासी अमल के, वो ये चाहते हैं कि आवाम को सेहत का मसला हल हो, रोज़गार के मसाइल हल हो, टैक्सेशन के मसाइल हल हो, लोगों को बिजली मिले, गैस मिले, पानी मिले, सेहत के मसाइल जो है उनको दरपेश उनका कोई हल निकाला जाए। लिहाजा जो भी अमल है वो प्रोसेस एक अच्छा अमल है, और इससे आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है, और ओवरऑल भी शहर में लोग खुशगवार माहौल में हैं, ख़रीदारी की तरफ जा रहे हैं, और लोग ये चाहते हैं कि ये अमल जारी और सारी रहे, और पाकिस्तान में जमहूरियत ही पनपनी चाहिए, जमहूरियत ही आगे जानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये थे जावेद शम्स, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत ही जो आनी चाहिए और जमहूरियत ही पनपनी चाहिए, और ना सिर्फ शहरी बल्कि ताजिर भी जो है वो नई हुकूमत जो भी क़याम अमल में आएगी उससे जो अवामी मसाइल और ताजिरों के दरपेश मसाइल हैं उनके हल के जो है मुंतज़िर हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।